یہ دولت اور نکل جا میری نظر کے سامنے سے. اللہ کی قسم آج کے بعد اس دہلیز پر قدم مت رکھنا. نہیں زید اٹھ, ایک بار مجھے بھائی کہہ کے بلا لے, میری ساری دولت لے لے, بس ایک بار اپنی آنکھیں کھول دے. تو کیا اللہ مجھے معاف نہیں کرے گا؟ کیا آپ جانتے ہیں شب بارات وہ رات ہے جب عرش پر وہ قلم چلتی ہے جو طے کرتی ہے کہ کس کا نام زندہ لوگوں کی لسٹ سے کاٹ کر مردہ لوگوں کی لسٹ میں ڈال دیا جائے. ارے بھائی شیروانی تیار رکھنا, عید کے بعد میری شادی ہے, دھوم دھام سے بارات نکلے گی. لیکن انسان نہیں جانتا کہ 7ویں آسمان پر سدرۃ المنتہا سے ایک پتا گر چکا ہے جس پر اس کا نام لکھا ہے. اے اللہ, حکم کی تعمیل ہوگی, اس سال یہ روح میرے سپرد کی جائے گی. افسوس کہ اس کا کفن دکان پر آ چکا ہوتا ہے اور پہننے والا ابھی بھی غفلت کی نیند سو رہا ہوتا ہے. لوگ کہتے ہیں یہ رات حلوے اور پٹاخوں کی ہے, لیکن کیا واقعی آج میری موت کا فیصلہ ہونے والا ہے؟ جی ہاں, آج کی رات آپ کی عمر, آپ کا رزق, آپ کی بیماری اور آپ کی موت سب کا بجٹ فائنل کر دیا جائے گا. تو کیا میرا نام اس لسٹ میں ہے جو اگلے سال یہ چاند دیکھ پائیں گے؟ آج ہم ان 3 رجسٹروں کا راز کھولیں گے جو شب بارات کو کھولے جاتے ہیں اور جانیں گے کہ وہ کون سے 2 بدنصیب لوگ ہیں جنہیں آج کی عام معافی کی رات بھی معافی نہیں ملے گی. یہ داستان ہے اس رات کی جب قسمت کے فیصلے زمین پر اترتے ہیں. یہ بات ہے شب بارات کی. شب بارات, the night of records. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اس سے پہلے کہ ہم مدینہ کی گلیوں میں چلیں, پہلے اس رات کی حقیقت کو سمجھنا ہوگا. ہم اسے شب بارات کہتے ہیں. شب فارسی لفظ ہے جس کا مطلب ہے رات, اور بارات عربی لفظ ہے جس کا مطلب ہے بری ہونا. بالکل ویسے ہی جیسے عدالت میں مجرم کو بے گناہ ثابت ہونے پر بری کر دیا جاتا ہے, آج کی رات اللہ اپنے گنہگار بندوں کو جہنم کی آگ سے بری کر کے جنت کا پروانہ عطا کرتا ہے. حدیثوں میں اسے لیلۃ النصف من شعبان یعنی شعبان کی 15ویں رات کہا گیا ہے. تفسیر کی کتابوں جیسے تفسیر بغاوی میں اسے لیلۃ المبارک یعنی برکت والی رات اور لیلۃ الصق مطلب دستاویز کی رات بھی کہا گیا ہے, یعنی وہ رات جب اگلے 1 سال کے لیے کون پیدا ہوگا, کون مرے گا, کسے رزق ملے گا اور کون بیمار ہوگا, یہ تمام فیصلے فرشتوں کے حوالے کر دیے جاتے ہیں. حضرت ٹھہریے, میں نے تو اگلے سال کے لیے بڑے بڑے پلانز بنا رکھے ہیں, نیا کاروبار, نیا گھر. کیا آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ آج رات یہ پکا ہو جائے گا کہ میں وہ اگلا سال دیکھ پاؤں گا یا نہیں؟ ہاں میرے بچے, انسان صرف منصوبے بناتا ہے لیکن ان پر مہر اللہ کی چلتی ہے. اپنی ڈائری بند کر دو زید, کیونکہ آسمان پر فیصلے کی گھڑی آ چکی ہے اور وہ آخری مہر آج رات ہی لگنے والی ہے. اب چلتے ہیں اس ایتہاسک رات کی طرف جس کا ذکر جامعہ ترمذی کی حدیث 739 اور مسند احمد میں ملتا ہے. یہ واقعہ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا خود بیان کرتی ہیں. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں, ایک رات میں نے اللہ کے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے بستر پر نہیں پایا, لیکن غور کیجئے کہ وہ گئے کیسے. دوسری روایت میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت آہستہ سے اپنی چادر ہٹائی, بہت آہستہ سے اپنے جوتے مبارک اٹھائے اور بے آواز یعنی بنا آواز کیے دروازہ کھولا اور باہر نکل گئے تاکہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی نیند خراب نہ ہو. سبحان اللہ. یہ تھی ان کی محبت اور احتیاط. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی آنکھ کھلی اور دل میں ایک انسانی خیال آیا, کیا اللہ کے رسول کسی اور زوجہ یعنی پتنی کے پاس تشریف لے گئے ہیں؟ اسی بے چینی میں وہ بھی چپکے سے ان کے پیچھے نکلی. وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے پیچھے چلتی رہیں, یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ کے قبرستان جنت البقیع پہنچ گئے. وہاں اندھیرے میں 2 جہان کے سردار اپنے ہاتھ آسمان کی طرف اٹھائے کھڑے تھے. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ وہ کافی دیر تک دعا مانگتے رہے. پھر جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم واپس پلٹے تو حضرت عائشہ تیز قدموں سے واپس گھر آ گئیں اور اپنی سانسیں درست کرنے لگیں. جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کمرے میں داخل ہوئے تو انہوں نے دیکھا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی سانسیں پھول رہی ہیں. آپ نے مسکرا کر پوچھا, اے عائشہ, کیا تمہیں ڈر تھا کہ اللہ اور اس کا رسول تمہارے ساتھ ناانصافی کریں گے؟ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں, یا رسول اللہ, میرے ماں باپ آپ پر قربان, مجھے لگا شاید آپ کسی اور اہلیہ کے پاس تشریف لے گئے ہیں.
तब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस रात का राज खोला। आपने फरमाया, ए आयशा, बेशक अल्लाह ताला शाबान की 15वीं रात को आसमान दुनिया पर नुज़ूल फरमाते हैं, और इस रात अल्लाह मेरी उम्मत के इतने लोगों को जहन्नम से आजाद कर देता है जितने बनी कल्ब की बकरियों के जिस्म पर बाल हैं। दोस्तों, यहाँ बनी कल्ब का जिक्र क्यों आया? क्योंकि उस दौर में अरब के अंदर बनी कल्ब कबीले के पास सबसे ज्यादा बकरियां थी। आप एक बकरी के बाल नहीं गिन सकते, तो हजारों बकरियों के बाल कितने होंगे? ये एक मिसाल है कि आज अल्लाह की रहमत का कोई हिसाब नहीं। आज रहमत बहाने ढूंढ रही है, लेकिन याद रहे ये आम माफी सबके लिए है, सिवाय उन 2 बदनसीबों के जिनका जिक्र हम आगे करेंगे। लेकिन ठहरिए, जज्बात में मत भइए, हदीस के अल्फाज बहुत सख्त हैं। इस आम माफी के ऐलान के बावजूद आज की रात कुछ ऐसे बदनसीब भी हैं जिनकी तरफ अल्लाह नजर करम नहीं फरमाएगा। जैसे सही इब्न हिब्बान में आता है कि अल्लाह फरमाता है, मेरे तमाम बंदों को माफ कर दो सिवाय 2 लोगों के। वो कौन है? पहला मुशरिक और दूसरा मुशाहिन। मुशरिक तो हम समझते हैं जिसने अल्लाह के साथ किसी और को शरीक किया, उसका तो इस रात से कोई हिस्सा नहीं। लेकिन ये दूसरा शख्स मुशाहिन, ये हम और आप में से कोई भी हो सकता है। लेकिन हजरत, मुशाहिन का मतलब क्या है? क्या वो कोई बड़ा अपराधी है? क्या वो कातिल है? नहीं, मुशाहिन वो शख्स है जिसके दिल में अपने मुसलमान भाई के लिए कीना भरा हो। ये वो शख्स है जो बाहर से तो दीनदार दिखता है, लेकिन अंदर से उसने अपने किसी रिश्तेदार या दोस्त के लिए बातचीत के दरवाजे बंद कर रखे हैं। क्या इसके लिए भी माफी है? नहीं, हुक्म है कि इन्हें छोड़ दिया जाए। जब तक ये आपस में सुलह न कर लें, इनका नाम लिस्ट में शामिल नहीं होगा। अल्लाहु अकबर। सोचिए जरा, आप पूरी रात नफिल नमाजें पढ़ें, कुरान पढ़ें, रो रो कर दुआ करें, लेकिन अगर आपके दिल में अपने भाई, अपनी बहन या किसी रिश्तेदार के लिए नफरत है, तो आपकी फाइल को मुअल्लक यानी रोका हुआ कर दिया जाएगा। रिश्ते तोड़ना एक धागा तोड़ने जैसा आसान है, लेकिन उसे वापस जोड़ना टूटे हुए मोतियों को जमा करने जैसा मुश्किल। आइए देखते हैं उस दौर की एक दास्तान, जब जुबान से निकला एक लफ्ज पत्थर की लकीर बन जाता था। ले जा अपनी ये दौलत और निकल जा मेरी नजर के सामने से। अल्लाह की कसम, आज के बाद इस दहलीज पर कदम मत रखना। भाईजान, दौलत के लिए खून का रिश्ता मत तोड़िए। अम्मी ने मरते वक्त हमारा हाथ एक दूसरे को दिया था। वो हाथ मैंने झटक दिया है। जा, अब मेरा तेरा रिश्ता खत्म। ठीक है भाई, मैं जा रहा हूं, लेकिन याद रखना, जब मौत का फरिश्ता आएगा तो वो इजाजत लेकर नहीं आएगा। उस दिन पुकारोगे तो मेरी आवाज नहीं आएगी। 3 साल गुजर गए, हर शबे बारात आई और गुजर गई। कासिम की अना यानी ईगो जीतती रही और भाई की याद हारती रही। लेकिन आज रात कासिम का दिल जोर जोर से धड़क रहा था, जैसे कोई अनहोनी होने वाली हो। या कासिम, जल्दी चलो, जैद की हालत बहुत खराब है, वो आखिरी हिचकियां ले रहा है। या अल्लाह, उसे मोहलत दे दे। मैं आ रहा हूं जैद, मुझे माफ कर दे मेरे भाई, मैं आ रहा हूं। हटो, सब हटो, मैं आ गया हूं। जैद, आंखें खोल, देख तेरा भाई आया है। सबर करो कासिम, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। वो चला गया, जाते जाते उसकी नजरें दरवाजे पर ही थीं। वो तुम्हारा नाम ले रहा था, लेकिन तुमने आने में थोड़ी देर कर दी। नहीं, जैद उठ, एक बार मुझे भाई कह के बुला ले, मेरी सारी दौलत ले ले, बस एक बार अपनी आंखें खोल दे। अब ये चीखें, ये आंसू, ये पछतावा सब बेकार हैं। वो कान बंद हो चुके हैं, वो फाइल बंद हो चुकी है। कयामत तक अब ये भाई सुनने को तरस जाएगा। कासिम ने तो देर कर दी, लेकिन आप, हाँ, आपकी सांसें अभी चल रही हैं, आपके पास अभी वक्त है। शैतान आपको रोकेगा, वो कहेगा कल सुबह चले जाना, बाद में देख लेंगे। लेकिन याद रखना, मौत का फरिश्ता कभी भी दस्तक दे सकता है। इसी वक्त अपनी अना का गला घोट दीजिए और अपने उस रूठे हुए रिश्तेदार के पास जाइए या उन्हें पैगाम भेजिए, इससे पहले कि अल्लाह हमें बुला ले। इस्लामी उलमा और इमाम गजाली जैसे बुजुर्गों के मुताबिक आज की रात इंसान के आमाल 3 अलग अलग रजिस्टरों में देखे जाते हैं। 3 रजिस्टर? हजरत, क्या मेरा नाम बदनसीबों में होगा? शेख ने उसकी तरफ देखा और पहले रजिस्टर की तरफ इशारा किया। पहला दफ्तर
दीवान मशहूद है। ये वो रजिस्टर है जिसके लिए अल्लाह के दरबार में नो एंट्री का बोर्ड लगा है। बेटा, ये शिर्क करने वालों की किताब है। अल्लाह फरमाता है इस पन्ने को मत पलटो जब तक ये बंदा दोबारा कलमा न पढ़े, इसके लिए जन्नत हराम है। अगर आपका अकीदा साफ है और आप अल्लाह को एक मानते हैं तो मुबारक हो, आप इस काले रजिस्टर से बच गए। लेकिन दूसरा रजिस्टर वो है जिसने बड़े बड़े इबादत गुजारों को भी फंसा रखा है। ये है हुकूकुल इबाद का रजिस्टर। किसी का दिल दुखाया, किसी का हक मारा या किसी की चुगली की, यहाँ अल्लाह अपनी रहमत के दरवाजे बंद कर लेता है। तो क्या अल्लाह मुझे माफ नहीं करेगा? नहीं, अल्लाह कहता है ये मामला तेरे और मेरे बीच का नहीं, ये तेरे और उस बंदे के बीच का है। जा, पहले उससे माफ करा, तभी मैं अपनी मोहर लगाऊंगा। जरा सोचिए, आप यहाँ सजदे में रो रहे हैं और वहाँ आसमान में आपकी फाइल पर पेंडिंग लिखा जा रहा है, सिर्फ इसलिए क्योंकि आपने किसी इंसान को नाराज किया है। और आखिर में खुलता है तीसरा दफ्तर, दीवान रहमत। ये आपकी और अल्लाह के बीच की राजो नियाज है। घबरा मत, अगर नमाज में सुस्ती हुई या कोई गुनाह हो गया तो ये वो दफ्तर है जिसे अल्लाह हवा के झोंके की तरह माफ कर देता है। आज की रात अगर आपकी आंख से एक सच्चा आंसू गिर गया तो अल्लाह इस पूरे रजिस्टर को धोकर ऐसे साफ कर देता है जैसे आपने कभी कोई गुनाह किया ही ना हो। आज की रात अपनी तकदीर बदलने का मौका है। हदीस में आता है दुआ वो हथियार है जो लिखी हुई तकदीर को भी बदल देती है। या अल्लाह, पिछले साल जो हुआ सो हुआ, आने वाला साल मेरे लिए हिदायत का साल बना दे। मुझे मोहताजी से बचा, मुझे अचानक आने वाली मौत से बचा। मांग लीजिए जितना मांग सकते हैं, क्योंकि देने वाला खुद आवाज लगा रहा है। जैसे जैसे फजर का वक्त करीब आता है, फरिश्ते अपनी लिस्ट पैक करने लगते हैं। लिस्ट मुकम्मल हो चुकी है। जिनके नाम जिंदगी वाले खाने में हैं, उन्हें मुबारक हो, और जिनके नाम मौत वाले खाने में हैं, अल्लाह उन्हें ईमान पर खात्मा नसीब करे। मेरे भाई, मेरी बहन, क्या पता ये मेरी या आपकी आखिरी शबे बारात हो। क्या पता अगले साल हम मिट्टी के नीचे हों। आइए इस वीडियो को मुकम्मल करने से पहले मिलकर एक दुआ करते हैं। क्या पता किसकी आमीन से हम सब की मगफिरत हो जाए। या अल्लाह, हमारे दिलों से नफरत और कीना निकाल दे। या अल्लाह, हमें उन खुशनसीब लोगों में शामिल कर जिनकी तूने आज मगफिरत कर दी। या रब, अगर हमारे नसीब में कोई बला, कोई बीमारी या कोई मुसीबत लिखी है तो उसे अपनी रहमत से टाल दे। आमीन या रब्बुल आलमीन। अब आप सब कमेंट में दिल से आमीन लिखकर दुआ में शामिल हो जाइए। क्या पता हम में से किसकी दुआ कबूल हो जाए।